देखो, these are the services which must run on the central device. ओके, एक डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न है, दूसरा सेंट्रल पैटर्न है. व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइज्ड? सेंट्रलाइज्ड मींस स्पेसिफिक डिवाइस पे ही चलना चाहिए. अदरवाइज जैसे कि नैट है, ठीक है, नैट आप असिमेट्रिक नहीं कर सकते. मींस आपके नेट एक डिवाइस पे चल रहा है और रिटर्न ट्रैफिक दूसरे डिवाइस से आ रहा है, तो वो नेट कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि नेट एक टेबल मेंटेन करता है, राइट? नेट का एक टेबल होता है. सो द टेबल में वो दैट विल नॉट हैव द रिवर्स ट्रैफिक. जैसे लोड बैलेंसिंग भी होता है, ठीक है. लोड बैलेंसिंग यू हैव टू रन इट ऑन अ स्पेसिफिक डिवाइस ओनली. डीएससीपी इज आल्सो मैनेज एंड मेंटेन ऑन अ सिंगल डिवाइस, ठीक है. फायरवॉल में देर आर टू टाइप्स ऑफ फायरवॉल, डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल एंड वन इज द समथिंग गेटवे फायरवॉल. तो दिस इज पैरामीटर फायरवॉल, ठीक है. वीपीएन में व्हाट हैपन, यू नो, द person or the device which is there as opposite end, he should see our device as a single device, not a distributed one, right? So that the reason VPN peer to peer hota hai between two devices. That the reason the SR must run on the central device. So for that reason edge node is there. What is edge node? Is nothing but a virtual machine in background. Edge node क्या होता है? पीछे से it's a virtual machine, ठीक है ना. सो दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज सर्विस राउटर, ओके. और दूसरा है डीआर. व्हाट इज डीआर मीन? डीआर का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड. एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग का कंपोनेंट है एंड वन इज सर्विस राउटर. डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि हर एक पे डीआर रन होता है, और सेंट्रल में सिर्फ जहाँ पे वो वीएम है वहीं पे होता है, ठीक है. वी आर गोइंग टू सी मोर ऑन दैट. So let's see what is edge node. So before going ahead, let me draw a topology कि edge node क्या है. These are our physical boxes और ESXi, ठीक है. And this is my physical switch, ठीक है. ये मेरा vCenter है and this is my vCenter and this is my NSXT manager, ठीक है. They all are connected through a single मैनेजमेंट लिंक, ठीक है. सब एक सिंगल मैनेजमेंट लिंक से कनेक्ट है एंड एवरीवन्स आईपी एड्रेस इज फ्रॉम अ /24 सेगमेंट. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो these are the ESXi 1 2 3 4 and this is vCenter and this is my NSXT manager. So whenever I want routing on all these devices, so what I'm going to do, I'm going to have a DR component. मेरे पास DR है, so एक आप DR बनाओगे, it will go ahead and instantiate on all devices, and this is logical. This is not backed by any virtual machine. So simply what I am going to do, any virtual machine which is there on this box, I am going to connect to this DR. इसको DR बोलेंगे, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर. Any virtual machine which is here, it's going to connect on to this one. This is also called as DR. They all share the same segment. If it's ये अगर इसका आईपी अगर 10.0.0.1 है तो ऑब्वियसली हर जगह इसका आईपी वही रहेगा, हर डीआर में, ठीक है. और इसको आप बाद में दे दो, इसको इसी को 10 दे दो और किसी को 20 दे दो. Okay guys, yeah, only 1 minute. Okay, so what happened, you know guys, now it's DR. Okay, everyone knows about this. Now we can ping. Same time, if we have another virtual machine like green virtual machine, okay,
So green virtual machine also requires a connectivity. The same DR will serve the connectivity. And here it's supporting 10.0.0.1. So might be the green segment might be different. It might be 20 dot or 11.0.0.1. Okay, if they both want to communicate, so within the device they will communicate. So this is called as DR, and it also called as tier 1 router. If you need a 3-tier architecture, why we need 3-tier architecture? To localize the traffic. Okay, we have Cisco 3-tier architecture, right? Access layer, distribution layer, and core layer. So what we'll do, we'll localize the buildings traffic onto that local distributed router. Okay, if we have 4 buildings, so 4 buildings will have 4 distribution layer. So all 4 distribution layer will handle their local SVIs. First building's SVI should not be created on the 4th building, because it will create problem. Okay, so that's the reason we have to localize the first buildings, all the VLANs on the distributed router of first building. Second buildings, all the VLANs SVI should be on the second buildings, that this one. Okay, so now all the distribution layers will connect to core layer. Okay, then core layer will do the routing requirement, fulfill the routing requirement among the all. Same happens here. If you want to have in tier architecture, you can have the tier 1, and then next is tier 0. So what is tier 1 and tier 0? So this is tier 1. Tier 0, I'm going to explain it now. Okay, so these all routers all are called as tier 1. So what they will do, they will localize their SVI's traffic 10.0 and 11.0. Any question here? Any question, guys? No. So the next is SR. Okay, so SR, to run the SR router, suppose to run the SR router, we need a one edge node. So what we'll do, we'll deploy the edge node, one edge node here. Okay, and we'll deploy the HA pair here. Okay, so generally what happen, our routers are 2 in background, if you see, right? So generally whenever you go, so we'll have the 2 routers in background in order to have the SA. Only 1 minute. Okay, so these are the virtual machines which we have to deploy. So this virtual machine, if I take it for example outside, then you have to protect it under the cluster. Why in cluster? If you protect it under cluster, then I'll come to know that, yeah, for my router these 2 VMs are going to serve, and then they are, because they are part of same cluster, those virtual machines which are part of same cluster will only serve that router. Okay, on top of this, I'm going to create one T0 router. Okay, so this will be my T0 router, and to this router, these VMs, this cluster is going to serve, and inside of this cluster, one will act as active and another might be as a standby. If you want active, that is also possible. Okay, what is active? We'll see it later, but just focus on active standby. So what I'm going to do, I am first VM, I am going to create it here. Second VM, I am going to create it here. Then I am going to form them inside of cluster, put them inside of cluster, and that cluster I'll refer at the time of creating the SR. Okay, while creating the T0 router, I'll refer that router. Okay, so what will happen? So what will happen is that router will get created. I'll go ahead and create that router. Actually, the router will be like this. Inside of that router, this VM will be there. Okay, this will be the one VM and this will be the second VM. So once you are done with this, then you'll go and ask DR that I want to, there must be a communication between these 2 devices. You have to understand this carefully. So what you can do, either you can go to this DR tier 1 router and just simply connect to the tier 0. So just you have to say that, yes, I want to connect to this tier 0. Automatically NSX will do the whatever. This is called as transit between 2 routers. In NSX NV, you have to do it manually, but here it's automatically, it's going to happen.
Simply you have to go to DR or tier 1, and then you have to say that I want to connect to this router. Then automatically one connection will be established. 100 series IP will be used there. Okay, and that way it will get one IP, it will get another IP, and it will, what it will do, it will forward all his default route to this IP address. We are going to see it. And then once this is installed, so this is going to have two components. One is DR component and one is SR component. This DR is going to communicate to this DR using the overlay environment, and this SR is ready to connect to outside world using the VLAN environment. Okay, so let's go ahead and see as a practical. Let me take to this slide first. So what is edge node? Edge nodes are appliance and pool of capacity. Pool of capacity means obviously the VMs are going to have the RAM, VMs are going to have the CPU and all. Okay, and which are not distributed, because those VMs are stick to a ESXi. Virtual machines are not distributed, right? They are either on ESXi 1 or ESXi 2. The form factor means the virtual machine, you want a bare metal or virtual machine. You want in form of virtual machine or bare metal. So if you are having a normal load, you can run it as a virtual machine. But you are going to have something more encryption, decryption. You going to use it as a VPN, IPsec VPN. That time, it's suggested to use a bare metal device. So you will have a separate dedicated hardware for that. Okay, so though it's virtual machine and bare metal, so it's present in both OV and ISO format. So there are three ways to deploy it. Either you can download the OV or ISO, or you can ask the NSXT manager to deploy it for you. NSXT manager holds both. Okay, so sometime what happen, suppose your data center is there in India, okay, in Bombay, and you want, and your NSX manager is there in Bombay, and you want router to be installed in Delhi. So that time it will take more load on that link, right? So instead of this, you should go there in Delhi. You will go ahead and install the router with the help of OV or ISO, and then you will ask that device to connect it back to Mumbai NSX manager. So that is a one case here where you can go ahead and use this. Okay. So next is sizing. So what do you mean by sizing? So there are three sizes available: small, medium, and large. Size is nothing but the cell where it will auto select the CPU and RAM combination. If you select a small, then it will go for that combination. If you select medium or large, it will go for that CPU and RAM combination. Okay. So resiliency, how you'll make sure that if one went down, one virtual machine or edge node went down, how second is going to take care. So there are two models are available: active means both will handle the traffic. Active standby means one will handle the traffic, another will stay as a standby. Okay, so there is a DPDK fast forwarding packet processing path is available. So this technology is only limited for VMware. Okay, using this technology, it will fast forward the packets. It will process more faster than the others. Okay, so this is how it works. So if you say NSXT ESGs, NSXT edge nodes are nothing but the ESGs in vSphere. Any question, guys? No? Any doubt? As of now, no question, but एक क्वेश्चन था मेरा, एक्टिव और एक्टिव स्टैंड बाय, राइट? Yeah. तो एक बेयर मेटल पे अपन एक्टिव रख के स्टैंड बाय या फिर एक्टिव सेकंड वाला जो रहेगा सेकेंडरी, तो वो अपन वीएम के अंदर ऐसे उसको कॉन्फ़िग हो पॉसिबिलिटीज है क्या, उसके होती है क्या? Means combination of virtual machine and bare metal. यस. Yeah, that is also possible, but no one will go for that. They will see it as a devices installed hardware software only. Though don't no matter if it's there on hardware or ESXi. But generally, what happen, VM to VM active standby or the hardware to VM active standby will not. I have not tried that, but I don't think so. That will make sense. Okay, got it. Got it? Yeah. So see, what is your expectation from standby device? That is one more thing. If why you are going for hardware, because you need more power. If your more power is there on first device, obviously second device you will prefer with same power only. You'll not prefer the weak one. Okay.
VM is also not weak, but sometimes the hardware requirement will be there. Normally, generally it for IPsec VPN only. Okay. Yeah. Moving next. So I told you that, right? Sizes, this form factor is nothing but the combination of CPU and RAM. Okay. So disk is always same. Here if you see memory, 4 GB memory and 2 vCPU it will reserve for it. 8 GB and 4 it will reserve in medium, and then if you go for large, 16 GB. Okay. So there is a VMX net driver is required, which is by default they're all for all hypervisors and runs on ESXi hypervisor, and then minimum CPU requirement must be matched, and the no specific NIC requirement is there, it will run everywhere. Okay. So this is the edge node VM form factor. Okay. VM form factor means this must run on ESXi. This is virtual machine, right? So apart from this, if you are going for edge node bare metal form factor, then you can go ahead and run it on any of the hardware. Okay. So it must have memory of 32 GB and 8 cores. So there is a compatibility market available in on the VMware side. There you can go ahead and choose it. It's not like that you'll go and buy any hardware. First you have to go ahead and select this and then check whatever hardware you have, where there you can go ahead and install it or not. Okay. So before going this, let me go for the practical. I'm going to log on to the lab 32. Okay. Last time we installed it or no? System node. We installed it, right? Last time? Yes. Okay. So what happened, when we installed last time, so one these virtual machines got populated from this NSX manager. This NSX manager, we went to NSX manager UI, and from there we instructed that I want one edge node on ESX1 and another ESX node on edge 2. Okay. So how it looks like in background, if you go ahead and see, that looks like as a virtual machine. Do you see edge node 1 and 2? This is nothing but the Ubuntu, one of virtual machine which is having IP address we have given as a 32. Okay. Do you see it? This is a virtual machine with CPU and RAM, 8 GB of this one RAM and 3 CPUs. Let's go ahead and see it here. Here you can see that these edge nodes are successfully connecting to NSX manager. So what does this mean? It means these edge nodes are successfully connected to NSX manager. So this connectivity is called as management connectivity. Okay. And management protocols are the one who are going to establish the connectivity between the this VM and the NSX manager, and then they will share the management information. Okay. So whenever there is a connectivity problem of this protocol, then it will show the management error. So there are two protocols. One carries the management traffic towards the NSX manager, and another one carries the control plane information. Okay. CCOE, one protocol is there at local, and one protocol is at global level, central level. Let's go back. Here, if you go to NSX Manager UI, and if you see it here, you can see that configuration state is successful. Okay, it means it is having the communication with the NSXT manager. So we have added it to the cluster, lab 32 cluster 1. Okay, now I'll go to networking, I'll go to tier 1 and tier 0. We created last time tier 0, is it, guys? Yes. Okay, so we created it, right? So if you can see it here, this is how your topology is now.
So what your topology says, you have 3 segments. All 3 segments are connected to router. The router is having IP address as 0.1, 1.1 and 2.1. Okay, then this communication between tier 1 to tier 0, how it got established? Simply you have to go ahead and connect it. How you are going to connect? From edit, from here you have to say that I want to I have to go to tier 1, not to tier 0. Okay, you'll come to tier 1, and from here you will simply say that I want to attach to tier 1. Once it's done, then what will happen? Then the communication will occur in between, and then they will get IP addresses, router link addresses. So one got 1, another got 0, something like that. Okay, and let's go ahead and log on through CLI. And this is your tier 0. And if you click here, then it's not showing. Let me go ahead and see it here. Do you see here we have mapped the cluster? Without this, it's not. Without this, SR will not get instantiated. Okay, so here what it says that I am using this cluster in order to carry out the SR in traffic. And if you see additional setting, you will see one IP address. Do you see here? 0. The tier 1 was having 1 and it's having 0. This one. So this got the connectivity now. This connectivity we have talked about. And now I'm talking about this connectivity. So internally, logically, it's having 2. One is here, one is here. How you are going to see? You can go to this virtual machine. You can see one is there on ESXi1, another is there on ESXi2. Okay, I'm coming back here. Here it should say in active standby. If you are not getting here, you can go ahead and click on. So why it's not here? Because SR is not SR is not instantiated yet. That's the reason. So what I'll do is I'll go ahead and first log into that device. Okay, where I'm going to log on to this edge node 31. Let's go ahead and log in. So 31 and this is 32. So let me log on to 31. So this will have some get commands. Okay, get something. So you can see that get BGP neighbor summary. You'll get the output. Okay, whatever get is there you can. So first command is get gateways. If you type get gateway, then you'll see only one VRF is created. There is no SR or DR instantiated yet on this one. Okay, that's the reason you are not seeing it is in active and standby. So how to instantiate? Because we don't have any, I have to check if I can configure the uplink. These uplinks are not yet up. Yeah, guys, I covered this last time. You have not. तुमने बताया नहीं मुझे ये सब कवर किया है मैंने already. Hello. So I believe only other side configuration is remaining, that VOS router side. हाँ, दूसरे साइड का रिमेनिंग है तो करते हैं ना, उसको भी फुलफिल करते हैं. So what I created here, I created the one of the interface like this. From here I gave the name and the VLAN number and all. Okay, I selected these devices. I'll go ahead and edit this one. Okay, I gave as a physical link, it's going to 132.201 IP I'm going to take. Okay, and like this 132 we are using for TEP addresses, right? So I'll go ahead and use 32. या 132 यूज करना है हमको. ठीक है, फर्स्ट विल ट्राई 132. मैंने बोला है कि नोड 1 पे, तो यहाँ पे इफ यू गो एंड सी ऑन नोड 1 व्हाट इज हैपनिंग इन बैकग्राउंड. Okay, this trunk link we are using inside of this, that NAT is, this one is happening. Under that VLAN we are going to use as a 132. Okay, and these ND profiles and all I'll also explain once I see your interest, guys. So why this is not up?
I'll go to VLAN statics. Object was not realized. Please check the alarms. Okay. So here I'll go ahead and check on 1. Please check the alarms. So let's go ahead and check the alarms. What happened? I'll go to home and here the alarms are there. So manager control channel is down and VM vSphere setting mismatched. So these alarms got raised and also resolved. So we don't have any open alarm as of now. Okay. Whatever critical alarms were there, those are closed now. Okay. No issue. Come back to the point here. Why our tier 0 is not up. So I had to check whether 132 VM is created. Okay. Show VLAN. Do you see 132 somewhere? Yeah, 132 is there. Yeah, it's allowed everywhere. I don't have any issue there. Let me check on master vCenter if I do have 132. See 106. Do you see 132 guys here? No, right? I'll go ahead and create it. One 32 is created. In lab, you have to make it accepted because we are using inside No, of this. ये 130 नहीं था, 132 नहीं था, only 32 था. 132 ऊपर है, 13 के. इधर है. उसके नीचे, उसी के नीचे, नीचे नीचे. Oh, got it, got it. हाँ. अच्छा यार दिला, मैं देखा ही नहीं उसको. ठीक है ना गाइस. सो वो वी सेंटर पे भी है और ये वी सेंटर पे भी है 132. ओके. ये 132 VLAN काम करना है. देखो ये वर्चुअल, इट्स ऑलरेडी वर्चुअल इन्वायरमेंट एंड वी आर यूजिंग वर्चुअल इनसाइड ऑफ वर्चुअल. सो क्या होता है कि वो दिस बिहेवियर यू हैव टू एक्सेप्ट इट that we are going to see the MAC address changes and all. Okay. So now let's go ahead and see whether this will come up or not. (132). Let me go ahead and boot my BIOS routers. So now here, how we are going to establish the connectivity, you can see it here. I do have 2 routers here. Okay. So here, from here, it will go to 132 and then it will go ahead and connect to 1 by 1. Okay. These 2 VMs. These 2 VMs are going to communicate it here. So it will be like this. Okay. These 2 VMs are nothing but routers now, and these 2 VMs will go ahead and then communicate it to our router VIOS 1, and then another will go and connect it to VIOS 2. Okay. So this will establish the 132 VLAN connectivity. Let me log on to these VIOS routers. Show configuration commands. So you'll get in set. Okay. So I should have the VLAN virtual IP address here, 132. Okay, which I'm not having here. So what I'll do now, I'll go ahead and use the VLAN 132 and then I'll create the IP address. So the configuration is already, I'm having that configuration. Do you see here? See 17 and 14.
each router's configuration is there. So I'll go ahead and use it as a 132. I think I have to search for 114 and change it to 132. Okay. Okay. Yeah, now everything is 132. There is no 114. So guys, I'm going to assign one interface as a 203, another router it will be a 204. Okay. And here what IP address we have used, if you see it here, I use 202 and 201. Okay. And here 203 and 204. So let's go ahead and assign the IP. I'll go ahead and do it. Config, and then I'll give the IP that Ethernet 1, which is this one, trunk, which will have 203. I'll go for another router B. Okay, I'll go and assign the another IP address, which will be 204. Okay, then on the first router, who is I'm going to establish the 201 from the 203. Okay, and 204 from here. So the IP will be like this. And what will be the remote AS? You can see 650, your lab number 132 132. Okay, so let's go ahead and use it. I'll go to router A, config. Already I'm there. I'll put that configuration, and then we are not going cross connection yet. We are establishing the direct connection. I'll go here and then like this. Okay, I'll save it, I'll commit it, then I'll exit. Again on router A, I'll save it, I'll commit it, and then exit. Okay, now what I have to do, I have to ping it, the neighbor 202. Is it pinging? No, right? It must ping. Okay, so why it's not reachable? (132) tagging is there, 32 is having 32 tagging, and they are having trunk, no issue. Yeah, here also trunk is there, it should ping. Pool 32. Why it's not pinging? I made sure that it's having policy as an accept. VLAN tagging is 132. So on that VYOS router, you see that network adapter showing manage VLAN 10. Do we need to change that network adapter to something else? Which one? If you go to vCenter, Mm-hmm.
there is a VYOS router, right? Yeah. Here you No, see no, this is management. This is management, and this is Ethernet 1. If you see here, I allocated IP to Ethernet 1. Ethernet one. Okay. Yeah. If I show configuration commands, see there are two Ethernet. The first Ethernet goes to management, and this is second Ethernet we are using Okay. for So this 132. is trunk, right? Yeah, this is trunk. And it's not coming, so what we'll do is we'll go ahead and what they are using. Let's see what segment I'm using. Yeah, I'm using this one only. 132. I'm using correct one, 132 only. So this VLAN 132 got created there or not, that is a question. Let me go ahead and see. Yeah, VLAN, it's created by NSX only. If you see 132. Guys, आप क्यों नहीं हो रहा है? Instead of this, what I'll do is I'll go ahead and use. Okay, what I'll do is I'll go ahead and use normal VLAN. 1 minute only. Okay guys, I'm going to delete it first and then I'm going to recreate it. Okay, so interface PHY1 physical one, it's going to external device, the IP will be 1. Okay, and from here connected to segment. Yeah, I must use 132 only. On node 1, it must realize. VLAN ID conflict with another VLAN sharing the same underlay switch. I got the problem now. Okay, so here the problem is we are using 132 for this one. What you call? We are using 132 for tape. Also, we are using for this one. So it's not recommended. Okay. So what I'll do is I'll go ahead and use VLAN 32. Okay. So physical 1. The same IP address, and instead of 132 I'll go ahead and use VLAN 32. Where is VLAN 32? It's not yet created. I'll go ahead and create it. This problem we faced in last lab as well. So I'll add a segment VLAN 32. Okay, and then I'll connect it to the VLAN. Okay, and here I will give IP address VLAN as a 32. Okay, so this is VLAN I'm creating 32, and we are going to use 32 instead of 132. Okay, so I'll go ahead and delete this which are creating. Yeah, question. क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं मेरे को कैसा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वो? कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा था कि फॉर टेप एड्रेस वी आर यूजिंग 132. डू यू सी हियर? और the same segment we are going to use it for BGP as well. So it says that it's not allowed. Last time भी यही प्रॉब्लम हुआ था, मैं भूल गया था. ओके, सो उसने बोला कि आप दूसरा कोई VLAN यूज करो, टेप का VLAन नहीं यूज करने का. ठीक है ना? ओके, जो टेप को कॉन्फ़िग करेंगे तो वो ऐसा कॉन्फ़िगर डबल नहीं होगा वो. हाँ, यस, उसने बोला कि वो यूज नहीं करने का, दूसरा करो. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू यूज 32 नाउ. ओके, वी आर चेंजिंग ऑल आवर IPs to 32 इंस्टेड ऑफ 132. ओके, ये देखो हो गया.
आईपी एज इट इज वैसे ही रहा 132.201। ओ सॉरी, ऐसे ठीक है चलेगा, एक काम करते हैं अपन। आईपी वैसे ही रखे, सिर्फ हाँ। वीलैन चेंज किया ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आईपी भी दूसरा भी यूज कर सकते हैं अपन, 132 यूज करते हैं, जाने दो, एक बार किए ना। तो तुम लोगों को प्रॉब्लम, मैनेजमेंट का भी वही आईपी, इसका भी वही आईपी, तो सेम वो प्रॉब्लम। आएगा तो बाद में समझने को, अंडरस्टैंडिंग को। तो या तो सिर्फ फिर उसको ये कर दो ना, 32 नहीं रख सकते ना वापस? 32 मैनेजमेंट को भी वही हुआ सेगमेंट, वो भी वही ये अलग सेगमेंट, सेगमेंट चाहिए ना फिर हमको। तो रखा ना मैंने। इसको 132 142 रख दो ना, 232 कर दो इसको। या 232 रख दो। हाँ 232 232 रखा। सही रहेगा 232 सीधा। रख दो। इसको मैं 232 करता हूँ, और विलायन भी 232 ही दे सकता था उसको, कर दो हाँ वैसे। वो भी नया इच रहा होता सब। ठीक है, तुम समझ करो में तुम्हारे आया लैब तो में, लगता मेरे है। लैब में तो मैं ये करता हूँ, चलेगा? ठीक है, क्या बोलते हो? मेरे लैब में मैं 132 ही रहने देता हूँ, तुम्हारे लैब में तुम वो चेंज कर दो 232, और विलायन भी 232 कर दो। चलेगा? इधर ही ठीक है, चलेगा, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं अभी और ठीक है, अभी करते हैं 2, उसमें क्या है, 1 मिनट का काम है उसको। वीलैन भी वापस चेंज करना पड़ेगा। हाँ वही ना, विलायन भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कर देते हैं। ठीक है तुम चलेगा। कर दो वहां पे, क्योंकि मेरे को और कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज करना पड़ेगा। ये देखो रियलाइज हो गया, ठीक है, क्लोज करते हैं। और ये आईपी चलेगा। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से ये इसमें, ये तो 132 में ढूंढेगा ना, ये आईपी जो हमने दिया है उसको 132 का ही दिया है, राइट? 132 भी रैम, तो मुझे ये चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आई विल गो अहेड एंड चेंज इट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको मुझे 32 करना है, तो मैं पहले इसको बोलूँगा डिलीट। ओके, यहाँ से वीलैन चेंज कर रहे हो आप, राइट? हाँ, तो वो मुझे नहीं करने देना सेम आईपी दो दो को असाइन, तो पहले नेबर भी निकालना पड़ेगा मुझे। ये डिलीट कर दिया, और दूसरा ये डिलीट कर दिया, ठीक है। उसको सेव करते हैं, कमिट करते हैं। फीस सबकी आ गई, बच्चे किधर गए? कॉन्फिग, ठीक है। ये कहाँ है शबीब मुबीन? शबीब का कुछ मेरा हुआ नहीं, क्योंकि मैं ऑफिस गया नहीं बहुत दिनों से, तो मिला नहीं शबीब को। ओके, ठीक है। आई एम गोइंग टू हैव 32 VLAN नाउ यूजिंग फॉर दिस वन सेट इंटरफेस, और ये नेबर इसको 1 दे देता हूँ इसको, ठीक है ना, हो गया। कमिट, सेव करना भूलना नहीं, ठीक है। इसका भी कंट्रोल मैं तुमको दे दूंगा, इसका यूजर नेम पासवर्ड वही है, ठीक है। वियोस एंड दिस वन, यूजर नेम वियोस है और VMware पासवर्ड। एग्जिट, पिंग, हो गया गाइस पिंग, ठीक है। अभी दूसरे के पास जाके कर दें। इसको बोलते हैं हम कॉन्फिग, डिलीट करो पहला वाला, ठीक है। ये भी डिलीट करो, एंड देन इंटरफेस भी डिलीट करो, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू कमिट इट, एग्जिट भी करते हैं, कॉन्फिग में भी जाते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू मेक इट 32, ठीक है। ये कर दिए, इसको भी कर दिए, इट्स फाइन। सेव वन टाइम भी किए, लास्ट में भी तो चलेगा, ठीक है। और पिंग करो इसको 201202 को, इट विल वर्क। शो IPBGP नेबर, शो IPBGP समरी,
ठीक है, यहाँ देख रहे हो तुम BGP दिख रहा है 132 का, एस्टैब्लिश हुआ क्या है? नहीं, राइट, बिकॉज नहीं, वो T0 पे करना है हमको कॉन्फ़िगरेशन। यस, ठीक है ना। तो ये T0 पे कॉन्फ़िगरेशन पेंडिंग है, तो क्या करेंगे हम, विल गो टू T0, देन व्हाट कॉन्फ़िगरेशन वी डिसाइडेड कि मेरे साइड से रहेगा 650.132, ठीक है, और लोकल से 6500 रहेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे जाता हूँ, देन BGP बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है, 6500 यहाँ पे लोकल एस है, यू हैव टू चेंज इट, ठीक है ना। तो कैसे चेंज करोगे, यू आर गोइंग टू गो एंड एडिट एंड देन यू आर गोइंग टू चेंज इट। तो ये आपका बन गया लोकल, ठीक है। रिमोट का क्या है, 6500 है 3 टाइम। इफ यू गो अहेड एंड सी द कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो वो 6500 है इसका, कहीं पे तो दिखेगा तुमको, ठीक है। तो मैं करता हूँ कॉन्फ़िगर, पूरा कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा तो मिल जाएगा तुमको। सो आई एम गोइंग टू यूज 6500, आई विल गो अहेड एंड यूज इट। नेबर, नेबर क्या है हमारा, 192.168.132.203, ठीक है ना। उसका 6500 उसका ये रहेगा। एंड देन इफ यू वांट टू हैव राउट फिल्टर, यू कैन डू इज अलाउ एस इन। अलाउ एस इन क्या होता है कि एस नंबर अगर पाथ में है तो वो अलाउ करना है कि नहीं करना है। सो अगर आपका घूम के ट्रैफिक आ रहा है तो तब उसका इनेबल करना है, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो किस किस सोर्स से 203 को कनेक्ट करना है। सो इफ यू सी दिस कॉन्फ़िगरेशन, टू ये एक ही IP 201 और 20 को कनेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम 203 को ये IP से कनेक्ट करेंगे। यू गॉट इट, ड्यूअल कनेक्टिविटी कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 650000 हो गया वो। ओ सॉरी, ये 65000, ठीक है ना। तो ये ड्यूअल कनेक्टिविटी कर रहे हैं। रिफ्रेश, इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। अब ये 204 को भी करते हैं, इसको भी देते हैं 000, और ये बोलते हैं कि दोनों IP से मुझे इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। पासवर्ड है, यू कैन गो अहेड एंड गिव द पासवर्ड एंड चेंज द टाइमर्स, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। अभी आ रहे हैं पैकेट, जा रहे हैं, यू कैन गो अहेड एंड सी इट हियर, ओके। तो उसको टाइम भी लगता है, लेट्स गो अहेड एंड सी, आई क्लोज। तो जैसे ये हो गया, विल गो टू फिजिकल एंड फ्रॉम हियर विल गो अहेड एंड चेक इट। शो IP BGP समरी, BGP समरी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब अभी प्रीफिक्स आप, एक आ गए। हाँ, ये अप होने के बाद क्या करेंगे हम, शो IP इफ यू परफॉर्म द राउट, या प्रीफिक्स भी आ गया, यू कैन सी योर राउट्स आर देयर। जो भी तुम्हारा 132 के राउट थे ना, वहां से नहीं आ रहे, एनी रीजन गाइस, ठीक है। आपको एडवर्टाइज भी करना है, वहां से NSX से एडवर्टाइज करने पड़ेंगे वो। राइट। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू एडवर्टाइज इट। सो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, मेरा दोनों का एस्टेब्लिश हो गया कनेक्टिविटी, यू कैन सी एक्टिव स्टैंड बाय में आ गया, ये एक्टिव और स्टैंड बाय, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एडवर्टाइज इट। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, Tier 1 में जाऊँगा और मैं बोलूँगा कि मेरे Tier 1 के सेगमेंट जो है, आई वॉन्ट टू रीडिस्ट्रीब्यूट इट, ठीक है। तो यहाँ पे राउट एडवर्टाइजमेंट है, राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन जो बोलते हैं ना। तो आई एम गोइंग टू एडवर्टाइज ऑल माय कनेक्टेड सेगमेंट्स। तो कितने मेरे पास कनेक्टेड सेगमेंट्स हैं, इफ यू गो अहेड एंड सी, दीज आर माय कनेक्टेड सेगमेंट्स। तो मुझे 1 2 3 0 1 2 3 को एडवर्टाइज करना है क्या, ठीक है। सो जनरली मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, एवरीवन दैट पुट 10 1 योर लैब नंबर 1032 एंड देन व्हाट एवर IP यू वांट टेक इट, ठीक है ना। तो सब अपना अपना एडवर्टाइज करेंगे तो राउटिंग टेबल में डबल डबल आ जाएगा ये IP, ठीक है। सो जनरली यू शुड डू दैट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको मॉडिफाई करता हूँ कि ऑलवेज आई नीड माई IP एड्रेस एज 1032 मेरा लैब नंबर, ठीक है। व्हेनेवर यू गाइज आर गोइंग टू डू इज मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दैट IP ओनली। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे मुझे वो समझ में आ जाएगा, मेरे वो राउटिंग टेबल में मुझे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 1032, ठीक है। अभी ये हो गया यहाँ से, तो हम Tier 1 में जाऊंगा, मैं Tier 1 को बोलूंगा कि इसको एडवर्टाइज करो नेक्स्ट, ठीक है। तो राउट एडवर्टाइजमेंट आई एम गोइंग टू एडवर्टाइज।
स्टैटिक राउट है, आई एम गोइंग टू डू इट. लोड बैलेंसर के विप के राउट्स है, आई एम गोइंग टू डू इट, बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस ओनली. ठीक है, अगर कोई लोड बैलेंसर कनेक्टेड है तो यहाँ से आप एडवर्टाइज करके स्टैटिक राउट आप उसको मार सकते हो. ठीक है, वंस यू आर डन विद दिस देन यू विल सी दोज राउट्स. ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है? जैसे तुम एडवर्टाइज करोगे तो वो आगे आपको राउट वहां पे मिल जाएंगे. शायद टीयर 0 के पास आएंगे, टीयर 0 को भी बोलना पड़ेगा. एक मिनट, वो तो टीयर 0 के पास आ गए, सॉरी. ठीक है ना, टीयर 1 ने टीयर 0 को दिया, यू कैन गो टू टीयर 0 और टीयर 0 को बोल सकते हैं कि आप आगे बीजीपी को दे दो. ठीक है, सो यहाँ से यू कैन गो अहेड एंड सेट द रिडिस्ट्रीब्यूशन कि भाई गिव इट फर्दर. सो ठीक है ना, रिडिस्ट्रीब्यूशन. सो आप यहाँ पे जाके उसको सेट कर सकते हो कि क्या क्या एडवर्टाइज करना है. मुझे जो रिसीव हुए टीयर 1 से वो आईपी भी करना है या मेरे पास के भी करना है. तो यू कैन चूज इट हियर कि भाई ये आईपीज मुझे मेरे पास के कनेक्टेड है और दोनों के कनेक्टेड बाहर भेजना है. ठीक है, आई एम गोइंग टू डू इट. ऐड, अप्लाई, डन. सो वंस यू आर डन इट, तो क्या हुआ, टीयर 1 ने टीयर 0 को दिया और टीयर 0 ने क्या किया, ही फॉरवर्डेड इट टू आगे. ये मिल गया आपके राउट्स. ठीक है, इफ यू कैन गो अहेड एंड इनिशिएट अ पिंग टुवर्ड दिस गेटवे एज वेल. तो आपका आउटसाइड वर्ल्ड का कनेक्टिविटी हो गया. ठीक है, सो अभी क्या किया हमने, इफ यू वांट टू सी सिंपली क्लिक ऑन टोपोलॉजी. टोपोलॉजी पे क्लिक करते हैं. लेट्स गो अहेड एंड रिवाइज इट व्हाट वी हैव डन. ठीक है ना, तो यहाँ पे वीएस राउटर लगे हुए हैं दोनों भी, एंड वी हैव कनेक्टिविटी, क्रॉस कनेक्टिविटी है. सो यहाँ से मैंने एडवर्टाइज किया यहाँ पे और यहाँ से एडवर्टाइज उसने आगे किया यहाँ पे. ठीक है, सो एंड द कनेक्टिविटी इज एस्टैब्लिश्ड. सो दिस इज आवर राउटिंग डन. लेकिन अब हम जाके चेक करेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ. ठीक है, सो आई एम गोइंग बैक टू दैट सेम डिवाइस. मैं जा रहा हूँ राउटर पे. याद है मैं राउटर पे लॉगिन किया था इनिशियल टाइम पे, एज नोड 1 पे. ओके, फर्स्ट वी हैव टू चेक विच वन इज एक्टिव. वी हैव एक्टिव स्टैंड बाय, राइट. तो मेरा एक्टिव कौन है, माई एक्टिव इज 1. सो आई एम गोइंग टू लॉग ऑन टू 1. ओके, मैं यहाँ पे बोलूँगा गेट गेटवे. इतना साइज ठीक है, बड़ा कर दो इसको. ठीक है, तो ये देखो, इससे पहले क्या दिख रहा था मुझे, सिर्फ VRF 0 ही दिख रहा था. ठीक है, वो टनल जो होता है ना, टेप के टनल्स. अभी देखो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास VRF 1 है, SR है और किसी का DR है. ठीक है, तो ये तुमको समझना है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे कि व्हाट आई एम हैविंग हियर नाउ, सो आई एम हैविंग डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर, 2 डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर मेरे पास, टीयर 1 का डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर और टीयर 0 का डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर. अगर मुझे टीयर 1 के डिस्ट्रीब्यूटेड राउटर पे लॉगिन करना है तो उसका VRF नंबर 4 है. अगर मुझे टीयर 0 के डिस्ट्रीब्यूटेड लॉगिन राउटर पे लॉगिन करना है तो उसका VRF 3 है. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, अगर मुझे इस पे लॉगिन करना है, ये यहाँ पे, तो उसका VLAN क्या है, ये इंटरव्यू में पूछेंगे कोई भी. ठीक है, उसका VLAN क्या है, टीयर 1 का डिस्ट्रीब्यूटेड VRF 4. ये देखो उसका VRF क्या है, उसका VRF 4 है. ठीक है, अगर मुझे यहाँ से SR पे लॉगिन करना है, इसके SR पे, इसके DR पे. ठीक है ना, तो इसका DR क्या है, सी दिस DR इज 3. VRF 3. ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 पे लॉगिन करना पड़ेगा VRF. अब इसके अंदर 2 है, इसके पास DR भी और SR भी है. तो इसके अगर SR पे लॉगिन करना है तो 1. तो लेट्स ट्राई टू डू 1 by 1. आई विल गो टू VRF 4 और मैं यहाँ पे गेट इंटरफेस अगर करूँगा तो मुझे क्या क्या दिखेंगे, याद है कि तुमको पूरे सेगमेंट्स आपके. ये देखो मुझे सबसे पहले जो मुझे सेगमेंट्स मिला, तो मुझे मिला, याद है हमने 32.1 बनाया था, 0.1, 0.2 मिल गया सब.
2.2 याद है ना, ये सारे इंटरफेस मिल रहे हैं मुझे, ये 1.1, 32.1.1, 0.1 और 2.1 तीनों भी मिल गए, और प्लस मुझे ये इंटरफेस मिला जो कि मैंने नहीं बनाया था, ठीक है। सो ये किसने बनाया था, वेन एवर आई डिड दी कम्युनिकेशन बिटवीन टीयर 1 टू टीयर 0, ये लिंक्ड एड्रेस है, ठीक है ना। ये 64.1 इसको मिला है और सामने वाले को 64.0 मिला है। इफ यू गो अहेड एंड सी द राउटिंग टेबल ऑफ दिस, गेट राउटिंग टेबल नहीं होता है इसमें फॉरवर्डिंग टेबल होता है, ठीक है। अगर आप फॉरवर्डिंग टेबल देखोगे तो ये सीधा पॉइंट करेगा 64.0 को। हु इज दैट 64.0? इफ यू गो अहेड एंड सी 64.0 कौन है, 64.0 है यहाँ से लेके ये दिख रहा है, ये है 64.1, ये है 64.0। ये क्या कर रहा है, देखो हमने यहाँ पे लॉग इन किए एंड वी गॉट दीज 3 इंटरफेसेस 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे हमको क्या मिला, पीछे डाउन के ये मिले और ये अपस्ट्रीम मिला और फॉरवर्ड राउटिंग इसको मिला। नाउ आई एम गोइंग टू दिस डिवाइस, ठीक है। अभी आपको किसी को पिंग करना है वीएम को, यू कैन गो अहेड एंड इनिशिएट अ पिंग फ्रॉम हियर। यहाँ पे लॉग इन करो, आप यहाँ से पिंग करो, किसी भी राउटर को करना है तो, किसी भी वीएम को करना है तो, ठीक है। आई एम गोइंग टू दिस डिवाइस नाउ। इसमें भी 2 पार्ट है, इसमें नीचे वाला पार्ट डीआर है, बिकॉज इसका डीआर और उसका डीआर कम्युनिकेट करता है, ये इसका भी डीआर है और उसका भी डीआर है, तो ये डीआर और ये डीआर बात करते हैं एक दूसरे को, और ऊपर का पार्ट एसआर है, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड एंड सी। अभी हम जाते हैं यहाँ पे, आई विल गो अहेड एंड एग्जिट, अगेन आई एम गोइंग टू हैव गेट गेटवे, ठीक है। तो अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, टीयर 0 के डीआर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा VRF3, तो इसमें मैं जाके गेट इंटरफेस करूँगा तो मुझे इसमें क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे कि भाई आई डू हैव दिस IP एड्रेसेस। कहाँ गए, कहाँ से शुरू हुआ हमारा, दोनों को भी एड्रेस दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो, उसको दूसरा और एक IP एड्रेस मिला 201, इसको BGP के लिए भी एड्रेस मिल रहा है, एंड देन SR का भी कॉन्फ़िगरेशन बता रहा। कहाँ था अपना कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला, ठीक है। VRF3 में आ गया मैं यहाँ पे। इफ यू गो अहेड एंड सी व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम गोइंग टू गेट दिस IP एड्रेस, ठीक है, जो कि उसका इंटरनल ट्रैफिक लेके जाता है उसका डीआर का, ओके। एंड दिस IP एड्रेस यू कैन आल्सो सी ऑन ESXi एज वेल, ओके। तो ये डीआर का इंस्टेंस है, एंड देन यू विल सी आल्सो 64 का एक एड्रेस मिलेगा आपको, यू विल सी इट हियर, मिला ये, इसको राउटिंग कर रहा है वो, ठीक है। आई विल गो अहेड एंड एग्जिट इट फ्रॉम हियर, गेट गेटवे। नाउ आई एम गोइंग टू SR, ओके। अभी तो मैं 2 डीआर पे लॉगिन किया, नाउ आई एम गोइंग टू SR। जनरली सब SR पे लॉगिन करते हैं, इधर नहीं जाता, तो आपको SR में जाना है। SR का VRF क्या है, 1, गेट इंटरफेस। तो अब आपको यहाँ पे देखना है क्या क्या IP मिले, कहाँ से शुरू हुआ ये, VRF1, ठीक है ना। तो यहाँ से यू कैन सी इट एज 132 का सीरीज IP, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पूरे इंटरनल IPs भी मिलेंगे, और यहाँ एक ही IP है, दूसरे में दूसरा IP मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको देखना है BGP वगैरह सब यहीं पे स्टैब्लिश होता है। तो हाउ यू आर गोइंग टू सी, गेट BGP नेबर समरी, दिख रहा है BGP दोनों का, यहाँ हमने दो BGP लिए हैं उसको, ठीक है। ओनली 1 मिनट गाइस, गाइस शुड वी टेक ब्रेक, 15 minutes break? Yes. Yeah, we'll come back at 11, fine. Okay. Sure. Okay, sure. I'll cover what accident क्या हुआ उसका अपडेट लेता हूँ, ठीक है ना। Okay. Sure.
सलाउद्दीन भाई, सलाउद्दीन भाई नहीं, शायद हुजैफ, आवाज आ रही है क्या मेरी किसी को? मुबिन भाई, सलाउद्दीन भाई, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ आवाज आ रही है। आपको देखा मैं सुबह दोपहर में, ये शाम में, अब इस मगरिब के पहले। हाँ क्या आवाज देने का ना भाई? आप अंदर चले भी गए तब तक गाड़ी भी लगा दिए थे आपने। अच्छा, हम्म, होता रहता है, ऐसे कुछ काम था नहीं, ध्यान ही हम्म। नहीं दिया मैंने। सलाउद्दीन भाई, साबिर भाई अलग से सेशन देने वाले ना ये डिस्कनेक्ट होने के बाद? हम्म, क्या करते क्या मालूम, वो इंसिडेंट वाला बोल रहे थे तो अभी। हम्म। नहीं भी लिया तो आपने क्या 80% तो कवर हो गया अभी। मुझे रिवाइज करना पड़ेगा भाई मेरा तो। मैंने कर लिया भाई रिवाइज पूरा, एक हफ्ते भर में। ऐसा अभी मेरे पास रिलेटिव आ गए थे, तो दो हम्म, तीन दिन से तो उसी में था मैं। अभी मैं कल परसों 2 दिन छुट्टी है, देखूंगा थोड़ा बहुत। तुम्हारा सही क्या है। इंटरव्यू ही है क्या, क्या इंटरनली? हाँ वो चलते रहता ना हमारे। हाँ प्रोजेक्ट चेंज हुआ तो इंटरव्यू भी होते रहते हैं हमारे। तो तुम्हारा पहले प्रोजेक्ट से रिलीज मिल गया ऑलरेडी? हाँ मिल गया ना। फिर अभी बेंच पर है क्या, कैसा? नहीं बेंच पे नहीं, दूसरा काम है ना, अभी भी चेक पॉइंट पे काम कर रहा ना मैं। अच्छा, चेक पॉइंट के बाद फिर अभी ये इधर मिलने वाला है एनएसएक्स में। फिर एसीआई चालू है, एनएसएक्स चालू है, बहुत चालू है अभी फिलहाल। जोर में काम है एकदम अभी कंपनी में। ऐसा। तो सलाउद्दीन भाई, जैसे बिकॉज ऑफ इन्फोसिस पहले लेके फिर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे टैग करती, तो हम्म, आपके पास कैसा रहता है सेम डायरेक्ट? वैसे ही है। ओके ओके, हम्म। अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे टैग करते हाँ रहेंगे। क्लाइंट के इंटरव्यू होता है ना, क्लाइंट साइड में भी। अलग से क्लाइंट इंटरव्यू रहते? हाँ, तुम्हारी कंपनी छोड़ के अलग से दूसरा जो क्लाइंट है? हाँ। अरे ये बाप सब रे। एजेंट कंपनी है, विप्रो इन्फोसिस, ये हमारी सब एजेंट है ये। तुम्हारी वाली भी वैसी है क्या? वैसी एजेंट ही है सब। अच्छा, मुझे लगा डायरेक्ट रहेगा इनका खुद का नहीं नहीं, डिपार्टमेंट। क्लाइंट इंटरव्यू रहता है ना। जिसके भी तुम डेटा सेंटर मैनेज करते हो वो लोग अलग से इंटरव्यू लेते हाँ हैं? हाँ, क्लाइंट लेता है ना, क्लाइंट के टीम वाले लेते हैं ना इंटरव्यू। तो तुम्हारा फिर अभी क्लाइंट इंटरव्यू रहने वाला है या कैसा, इंटरनल? क्या मालूम अभी क्या होता, वो नहीं मालूम अभी क्या होता। तो ये होने के बाद अपन अलग से बात करते हैं आराम से, हम्म, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है ना, इसीलिए आई जस्ट वांट टू कीप एवरीथिंग हम्म। इन कॉन्फिडेंशियल। रिकॉर्डिंग स्टॉप पॉज होता ही है। अपन कर सकते हैं क्या हम यहाँ से तुमर में? वो तो देख सागर रहा भाई को है। रहेगा ना, क्योंकि हाँ पॉज कर सकते साबिर भाई हाँ, रिकॉर्डिंग। सागर भाई कर सकते बस। हम्म, चले, एनीवेज ये इनका सेशन आज खत्म होने के बाद फिर हमारा अलग से रहेगा ना, तुम्हारा मेरा, हम्म। उसी में फिर डिटेल में बात करते हैं। मेरे पास थे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तुम सीनियर है तो तुम हेल्प कर सकते हो उसमें रुको, तुम्हारे नंबर पे कॉल करता सलाउद्दीन भाई। हम्म। Assalamu alaikum. 1 minute. Miraj is also joining. Right. वालेकुम अस्सलाम, क्या बोल रहे थे सर? यू सेड समथिंग? Give me. Yeah. Okay. So where we are? यहाँ तक BGP establishment तक all is fine, guys. आई थिंक यू नीड टू शेयर योर स्क्रीन। Already it's okay. Let me share it again. Okay, guys. So ये BGP establishment routing समझ में आया? DRSR. So in SR component, you can log in and you can check many parameters like BGP, routing table, and all those things. ठीक है?
now I am inside of SR. कहाँ पर गया हूँ? ठीक है, I'll go back again to node 1. ठीक है, I'll type it as a get gateway, okay, or get logical router. So I'll use my VRF1, okay, VRF1, and then get route or get BGP neighbor, get all these things. So whatever you are getting here, these routes are advertised by T1C. It means tier 1 connected, tier 0 connected, like this. If any NAT route is there, then you'll have different identification based on these attributes. Fine. Okay. So this is how this works. So where I logged in, you can see it here, tier 0 router. I logged on the SR component. Okay. Yeah. So let's move back here. If you want to get summary from this one, you can also generate the BGP summary. You'll come to know on which node you are getting the output from, and then you can see that 4 BGP neighbors are having established. Okay, if you want to see specific per node, then you can also see that one node 1 is having 2 BGP neighbors. So which node that is? This node is having 2 BGP neighbors. One is with the first one and another with second one. Okay, like this we are having cross connection. Do you see it? Yeah. And also, if you want to do the what you call this is also interview question, that if you want to do the failure, okay, failure of what? If you want to failure from this one to this one, if you want to perform any activity, okay, so you can do the failure. So how to do the failure? You can simply go here. You can go to the nodes, and there are 2 nodes, right? Which are these nodes? This is the node 1 and this is node 2. As of now, outside traffic is going through node 1. So what I'll go ahead and move it to maintenance mode. Enter NSX maintenance mode. Okay, this will shift the traffic. So, Sir, for how this, do you? Yes, go ahead, Naresh. Yes. for this, both the nodes need to be available in different ESX hours. Yeah, generally what happened, both the nodes will be there on different nodes, different ESX only. How you'll find that? You can go to cluster. Generally, one automatic one rule you want to create, or this will be created. One rule will be created. Okay. So you can go ahead and create that rule, anti-affinity rule. Okay. Keep Yes. virtual machines separate. Okay. So this is not created. If you want, you can do it. Okay. Okay. So now you can go ahead and perform the activity. And if you go ahead and see, I'm here, right? Get BGP neighbor summary, then you'll see nothing because I'm there on the node which is there in maintenance mode. Okay. Okay. Get route, nothing is there. So now in this case, I have to log on to this one. So this is first time I'm logging in. So see, whenever you see get gateway, okay, so here the VRF0, this is for management purpose. So what is that management and what are these tunnels? Okay, these things we know that this is going for, this is the these are the 2 DRs of service tier 1 and tier 0 router, and this is the service router for this one. Okay, 1 2 3. What if VRF0? Get interface. Okay, VRF0 holds your management tape IP address, 132 IP. Sir, it's create a tunnel as well, that transport tunnel, you know? Yeah. So what is the tunnel mean is, tunnel is communicating with multiples, right? If you go ahead and see, these are the tunnels. Do you see tunnels? So from where to where it's creating tunnel. So our lab is very small, right? So it will be too easy for us to judge. So here it's creating between 53 and 52, means between 2 nodes. If any traffic transformation is there, let's see host tunnels.
We can go ahead and click on this one. Do you see here multiple tunnels would be there? Here we don't have any virtual machine, that there is a no tunnel is there. So those are tape tunnels. Okay. Sir, host tunnel and edge tunnels are different. No, all are having tape addresses. If you see the topology here back again, see this one, for example, suppose everything is up, this is down and this is up. So this is going to get one tape address. This ESX is going to get one tape address, one tape address, one tape address, one tape address. Okay, and this Okay. NSX manager is going to list down all that information. Okay, before NSXT, NV was not having that tape address. It was having only VLAN. Okay, so now Yes. now it also got the tape. It's also participating in tape address. You can see the tape address which is part of tier VLAN 0. Sir, NSX in this NV में tunnel, VXLAN supported नहीं है क्या? Pardon? NSX NV does not support VXLAN. Yeah, it supports the higher version of VXLAN, that is Geneve. That is also VXLAN only. Okay, Geneve is having more attributes. So in more attributes, it will go ahead and insert more configuration and all. Okay. sir, But इसमें NSXV doesn't support tape address for edge nodes, but here T supports that one, right? Yeah. NSX NV में क्या होता था that if anyone asks you that what is the major difference between NV and T, so you can say that the way Salahuddin told that edge doesn't support in NV, but in T those edge nodes will support the tape addresses. Right, and this way you can go ahead and move it back as well. I'll go to node and then I'll bring it up. So this way you can shift the traffic. Exit maintenance mode. सर इसके अंदर जो टनल है इसके अंदर दो टाइप के टनल आते हैं, एक टेप टनल आता है, एक आर टेप आता है. तो आर टेप कौन से सिनेरियो में यूज होता है? कौन सा टेप? आर टेप. आर टेप रिमोट टनल. Remote tunnel is for both are the tunnels only. Let me go here. I'll show you. I'll go to remote tunnel. Remote tunnel means I think it will go to ESXi, but as of now we don't have that tunnel established. Okay, actually this should be a very matured lab, right? Then only you will get all these things. So as of now we don't have much traffic, so that is the remote tunnel. See, controller connectivity is down. Both two connectivities are there, management and controller. So addressing to your point, Amiraj. So remote tunnel is nothing but it's going to the transport node, remote transport node. Yes, a host. Nodes are also establishing connectivity with this one. They are also establishing connectivity like this. Because all communication is happening through tunnels only, right? IP based. There is no spanning tree and all. सर उसके टनल आईपीज हमको डिफाइन करना पड़ते हैं ना उससे पहले? नहीं, that will be defined by themselves only. Once they got the tape address, they will decide it. One question. Yeah. अगर इन विचर कुछ भी टनल से जाएगा और जो भी जाएगा तो वो ESXi का जो टेप एड्रेस है फिजिकल पे जो कॉन्फ़िगर्ड है स्टार्टिंग का, तो वही यूज करेंगे ना सब वही यूज करेंगे. ओके. See, मैं आपको बताता हूँ. See, I am taking you back to this node. Okay, this node is having only two connected interface. First connected is management, so it will receive the all NSXT instructions, manager instructions. And this trunk is to carry your all data traffic, whatever you are processing, right? You are giving it VLAN 32, 132 and all, or external communication. This will happen through this. So it also has architecture. I'll show it to you. Allows in multipath, IBGP, inter SR routing भी एक interesting topic है.
जैसे कि ऐसे ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है, इट्स यूजिंग 169 आईपी एड्रेस, यू सी हियर, ओके। सो अगर यहाँ पे कुछ इशू होता है तो नाउ ट्रैफिक विल गो लाइक दिस। सो 169 जो एड्रेस है, जनरली टीयर 1 टू टीयर 0 ये एड्रेस यूज होता है, दूसरा वाला, ठीक है, और 169 इट्स बिटवीन दीज टू और आईबीजी। सो ऐसे ट्रैफिक जाएगा इन एक्टिव सिनेरियो, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटर एसआर राउटिंग, और ये आपको इनेबल करना होता है, ये भी इंटरव्यू में कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। इंटर एसआर राउटिंग समझ में आया? ये जनरली आपका दो नोड्स है, नोड 1 नोड 2, हमारी टोपोलॉजी है सेम, लेकिन अपने में एक्टिव स्टैंड बाय था, ठीक है। ये एक्टिव है। अभी एक्टिव में अगर एक लिंक फेल हो जाता तो यहाँ पे ट्रैफिक आने के बाद इंटरनेट ट्रैफिक पूरा ड्रॉप हो जाएगा, राइट। और ये दोनों के बीच में ये लिंक अगर नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो ये क्या करता है, ये दोनों के बीच में लिंक बनाता है, और ये इंटरनेट का ट्रैफिक इधर ही आएगा, लेकिन इधर से बाहर जाएगा इंटरनेट के लिए, और कॉर्प 1 के लिए तो ऐसे ही जाएगा। तो ये कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, क्या करते हैं, दिस सेटिंग इज हियर, बट वो एक्टिव में होती है ज़्यादा। ये क्यों नहीं जा रहा है वापस, ओके। सो लेट्स गो बैक टू दिस टनल, तो यू सी दिस टनल इज अप, उसको हमको ट्रैफिक ही चाहिए उसको, ठीक है, तो तभी वो दिखेगा वहाँ पे अच्छे से, अदरवाइज इसके साथ खेलते नहीं बैठने में, ठीक है। आई कम बैक गाइस हियर, यहाँ पे इंटर एसआर भी बताता हूँ। ये इंटर एसआर कब होता है, जब यू हैव एक्टिव, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक सेटिंग होता है दैट यू हैव टू इनेबल। कहाँ गया इंटर एसआर, यहीं पे होता है, ठीक है ना। तो सी दिस इज राउटर लिंक और दिस इज ट्रांजिट सबनेट 169 वाली। तो इंटर एसआर का यहीं पे होता है, लेकिन वो एक्टिव के लिए सपोर्टेड है। सो व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू चेंज इट टू एक्टिव, ओके। सो एज ऑफ नाउ तो हमने नहीं किया हुआ है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, अभी तो करने नहीं आएगा क्योंकि ये एक्टिव स्टैंड बाय है, ठीक है। Coming back to this one, we are covering more questions only, right? तो अभी क्वेश्चन में और क्या कवर करेंगे, मैं थोड़ा फटाफट इसको, ये तो हम बाद में पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। मेरे पास था एक, सर कुछ क्वेश्चन है तो जो अपना ट्रांसपोर्ट नोट और होस्ट एज नोट्स और होस्ट नोट दोनों में क्या डिफरेंस है, और कहाँ पे मतलब T1 से होस्ट की कम्युनिकेशन होता है और एज नोट का T0 से कम्युनिकेशन होता है, करेक्ट? एज नोड और कौन सा नोड, होस्ट नोड, ओके। एज नोड और होस्ट नोड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नोड, राइट। हाँ सर। तो सर क्या, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? मतलब उसका कम्युनिकेशन कैसे होता है, मतलब उसके अंदर दो नोड्स है, एक होस्ट, जो होस्ट एज ESX है, सारे जितने भी कनेक्टेड होते हैं वो होस्ट एज नोड को कनेक्टेड होते हैं, और जितने भी सारे एज नोड्स होते हैं हमारे, जो T1 T0 का जो राउटिंग कैपेबिलिटी है, तो वो एज नोड को कनेक्टेड होते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन तो मुझे समझा नहीं, लेकिन लेट मी आंसर इट फर्स्ट, देन I'll do you see everyone is having one tape address as a common 132, इसको 50 मिला, इसको 51 मिला। Do you see here one got कहाँ पे था मैं, one got 50 and one got 51, okay, I am there on ESXi, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि इसको मिला 50 132.50 और इसको मिला 132.1। नाउ आई एम गोइंग बैक टू द नोट्स। अब नोट्स को क्या मिला, एक को मिला 52 एंड एक को मिला 53, ठीक है। इसको मिला, ये इसको मिला 52 और इसको मिला 53। सो ये सब एक सेगमेंट में है कि नहीं,
All type address, हाँ all 4 addresses are in same type address, right? सेम हाँ 2 are the transport nodes and 2 are the edge nodes. 50 और 51 ट्रांसपोर्ट नोड है, ठीक है, और 52 एंड 53 एज नोड है. दे ऑल आर इन सेम टेप एड्रेस. सो जैसे ही 51 को 50 पे जाना होता है, यहाँ से टनल में ये जाएगा, इनकैप्सुलेट करेगा यूजिंग दिस अंडरले इंफ्रा, ये यहाँ पे जाके डिकैप्सुलेट कर दें. एक दूसरे को वो दे विल यूज अंडरले एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट. और ये किसके पास क्या रखा हुआ है कौन बताएगा, यहाँ पे का वो जो 3 टेबल्स है ना वो बताएंगे, मैक टेबल, आर्प टेबल एंड टेप टेबल, राइट? Does that answer your question? हाँ. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे और कुछ क्वेश्चन गाइस, कुछ भी पूछो आप, नहीं क्या? हाउ यू विल मेक श्योर दैट which क्लस्टर इज अप, ठीक है? तो यहाँ पे क्लस्टर बी है, सी है, डी है. कैन यू म्यूट द लाइन महाराज? और कौन है? ठीक है ना. सो यहाँ पे अगर मल्टीपल कंपनी में क्या होता है मालूम, कि मल्टीपल क्लस्टर्स आपको दिखाई देते हैं, तो कोई भी क्लस्टर पे जाके अपना कॉन्फ़िगर NSX शुरू नहीं कर देने का, ठीक है? सो और जिस भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको चेक करना है कि भाई सिर्फ इस पे इंस्टॉल्ड ही है तो इसी पे NSX अप्लीकेबल है, अदरवाइज दूसरे क्लस्टर्स पे नहीं है. Got it? तो यहाँ पे आप एक VM में डालोगे और वो गेटवे उसको पोर्ट ग्रुप सेलेक्ट करोगे तो नहीं चलेगा वहाँ पे, ठीक है? और एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इफ आई फॉरगॉट टू डू NTP सेटिंग, ठीक है ना, तो मुझे अब वन गो में सब पे करना है, तो नोड प्रोफाइल काम आएगा उसमें. ये नोड प्रोफाइल क्या काम करता है? ऑल कॉन्फ़िगरेशन इन दिस प्रोफाइल्स आर अप्लाइड टू द मैनेजर एंड एज नोड्स. ये सबको अप्लीकेबल है. अगर आप एज नोड के अंदर जो भी ये कॉन्फ़िगरेशन में आप चेंज करोगे, सपोज मैं भी यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, मैं सिस्लॉग सर्वर देता हूँ, NSX मैनेजर को भी सिस्लॉग मिलेगा और एज नोड को भी मिलेगा. मैं सपोज यहाँ पे जाके मैं NTP का IP देता हूँ, ठीक है, वो सबको मिलेगा. फिर मैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करने वाला हूँ दैट विल बी अप्लाइड टू ऑल. देखो मैं सबको जाके मैं एक टाइम देता हूँ, ना कोलकाता किधर है? नोड प्रोफाइल सेटिंग ना सागर में. हाँ, ये नोड प्रोफाइल में ऑल नोड प्रोफाइल सेटिंग. तो ये यहाँ पे मैं जो भी डालूंगा 192.168.1.100 है ना हमारा, ठीक है, 1.11. सो दिस विल बी रिसीव्ड बाय whom? ऑल. क्या हुआ यहाँ पे? कुछ तो गड़बड़ हो गया, ठीक है? तो ये सबको मिलेगा. तो मैं हम जाके सबके पास चेक करते हैं कि भाई हमने उसको दिया था कि वो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो गेट NTP सर्वर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, मिल गया, ठीक है? अब या नहीं भी पहले भी कॉन्फ़िगर रहा रहेगा तो हम खुद से करते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे मैं बोलूँगा गेट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे गेट मैनेजर, ठीक है? अभी इसका और मैनेजर का कोई रिलेशन है क्या? तो यहाँ पे वो बताएगा हाँ मैनेजर कनेक्टेड है, ठीक है ना? गेट कंट्रोलर, कंट्रोल प्लेन की कनेक्टिविटी है, हाँ कंट्रोल प्लेन भी इनेबल्ड है, 1 2 3 4 5 पोर्ट नंबर है और अप है, ठीक है? बहुत से केसेस में डाउन चली जाती है, ठीक है? तो इसका कंट्रोल से कम्युनिकेशन टूट जाता है दैट टाइम. तो ये कंट्रोलर कनेक्टिविटी डिस्प्लेज द कंट्रोलर और मैनेजमेंट विल कैरी द मैनेजमेंट ट्रैफिक. तो CCOE और CC कौन सा था? वो एक लोकल होता है और एक सेंट्रल होता है. LCP CCP. LCP लोकल कंट्रोल प्लेन, डेटा सेंट्रल कंट्रोल प्लेन. करेक्ट, ठीक है? और इसमें मैं और एक चीज़ बताता हूँ. यहाँ पे अगर सपोज ये IP ही डाउन है, ये वाला, ये IP, तो यहाँ पे एक दूसरा और एरर आएगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको ये शट डाउन करना पड़ेगा, देन यू विल जनरेट दैट एरर, IP रीचेबल ही नहीं है, ठीक है? तो वो उसको मैं 2 को डाउन करता हूँ, शट डाउन, ठीक है ना? तो मैं 2 को डाउन करता हूँ तो एक एरर आएगा, मैं नाम भूल गया उसका, तो वो दैट
एमपीए कनेक्टिविटी, सॉरी एमपीए, तो वो मैनेजमेंट का उसको 32 ही रीच नहीं हो रहा है, दैट इज मैनेजमेंट कनेक्टिविटी। ठीक है, थोड़ी देर में मैनेजमेंट प्ले यस, एजेंट। मैनेजमेंट प्लेन का कनेक्टिविटी है, कंट्रोल प्लेन तो दूर की बात है, पहले मैनेजमेंट प्लेन देखेगा ना। हाँ कभी कभी क्या होता है पता है क्या, ये अभी अभी तो मैंने वीलाइन शट डाउन किया तो इसका कंट्रोल प्लेन भी डाउन हुआ, मैनेजमेंट प्लेन भी डाउन हुआ। बहुत से केसेस में ये अप होता है लेकिन बीच में का राउटिंग कहीं तो भी डाउन हो जाता है। ठीक है, सो दैट टाइम मैनेजमेंट कनेक्टिविटी चला जाता है, कंट्रोल प्लेन वो अपना अपना काम करता रहेगा। ठीक है, मैंने 2 को डाउन किया क्या 1 को, आएगा वो एरर। ठीक है, और कौन से एरर 2 है? को डाउन किए, हाँ 2 को डाउन किया तो इसके साथ डाउन हो, 1 डाउन हुआ। एमपी आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये प्रोफाइल समझ में आया सबको, नोड प्रोफाइल। ठीक है, ऑल कॉन्फ़िगरेशन इन दिस प्रोफाइल अप्लाई टू, सबको जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट इज सर इसका जो सेगमेंट है, सेगमेंट से फिर T0 और T0 से T1, इसका कनेक्टिविटी कैसा रहेगा और उसको क्या क्या मैंडेटरी है, मतलब प्रीरिक्विजिट है वो सारी चीजें करने के लिए, वो एक बार बताओ ना। फिर से पूछो क्वेश्चन तुम्हारा। सेगमेंट की कनेक्टिविटी है अपने T1 से, T1 की कनेक्टिविटी अपनी T0 से, हाँ तो ठीक है ना, तो उसका ये प्रीरिक्विजिट कैसा रहेगा और क्या क्या प्रीरिक्विजिट मैंडेटरी। ठीक है, सो वट एवर यू आर सीइंग हियर दिस इज ओवरले। ये देखो सेगमेंट बनाया तुमने, पहले एक वेब सेगमेंट बनाया, इसको एक 5000 का एक ये मिला, ठीक है ना, VNI नंबर। ठीक है, ये दूसरा तुमने बनाया, इसको 5001 देते हैं, और इस तीसरा तुमने बनाया 5002 देते हैं। ठीक है, दे ऑल आर कनेक्टेड टू गेटवे। ठीक है, ये तीनों भी अलग अलग होस्ट पे है, सपोज फॉर एग्जांपल इफ दे वांट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर तो क्या करेंगे, अपना वही वाला लॉजिक यूज करेंगे, अगर तीनों डिफरेंट डिफरेंट पे है तो। इफ यू गो हियर, अगर ये 3 ये VM है तो ये क्या करेंगे, इफ दे वांट टू गो बिटवीन द सेगमेंट्स तो क्या करेंगे, अपने DR से जाएंगे, DR से परमिशन लेके राउटिंग कर देंगे। अगर सपोज ये ब्लैक, ये ग्रीन है और ये ब्लैक को कम्युनिकेट करना है, तो ये ब्लैक तो यहाँ पे लोकल है, तो ये जाएगा और ये यहाँ से इसको हैंड ओवर राउटिंग तो कर देगा, लेकिन ये टेप के पास आएगा, टेप को इनकैप्सुलेट करेगा, यहाँ डिकैप्सुलेट करेगा, और विदाउट टचिंग टू राउटर इट विल गो अहेड एंड गिव इट टू दी सेगमेंट। ठीक है, ऐसे कनेक्ट, ये ओवरले होता है, नीचे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, आपका जो अंडरले इंफ्रा है ना उसको कुछ भी पता नहीं चलता है कि इधर क्या चल रहा है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। आपका राउटिंग अच्छी हो गया, स्विचिंग अच्छी हो गया, फायरवॉलिंग अच्छी हो गया, नीचे इसको कुछ भी पता नहीं चला कि ऊपर क्या चल रहा है। दैट द रीजन इट्स कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। ठीक है, फिर और कोई आपको पूछेगा कि भाई आपने कभी टैग के साथ कॉल रेज की है क्या, तो अभी VMware के साथ हम कॉल रेज नहीं करते, ब्रॉडकॉम के साथ करते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडकॉम के साथ करेंगे तो ब्रॉडकॉम को नहीं, पहले तुम्हारा आंसर क्लियर है क्या बिफोर गोइंग अहेड? हाँ सर, उसका बस मेरे को कनेक्टिविटी देखना, कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा वो नहीं तो जानना दिया था। है ना कनेक्टिविटी यहाँ पे, ये देखो ये सेगमेंट बनाया आपने, और सेगमेंट में जाके आपने यहाँ Tier 1 को कनेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ लैब 32 टेस्ट सेगमेंट। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं बोलूँगा कनेक्ट किसको करना है, तो वो बोलेगा डायरेक्ट Tier 0 को भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू Tier 1 एज वेल। ठीक है, मैं बोलूँगा मैं डायरेक्ट Tier 1 को कनेक्ट करूँगा। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा कि भाई इसमें क्या चाहिए आपको, ओवरले या VLAN, मैं बोलूँगा मुझे VXLAN यूज़ करना है। ठीक है, तो ओवरले सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसको VXLAN से एड्रेस मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ 10.32.4.1 देता हूँ उसको /24। ठीक है, IPv6 देना है तो वो भी दो, अगर इसका कनेक्टिविटी आगे वाला बंद करना है तो वो बंद करके भी रख सकते हैं आप, कॉन्फ़िगर कर दो लेकिन बंद करके रखो, कभी होता है ना हम शट डाउन करके रखते हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो, तो और बाद में यू कैन गो अहेड एंड सेव इट। ठीक है, तो ये ऐसे कनेक्टिविटी होता है। तो आपका जो अभी VLAN था कौन सा था, मैंने जो बनाया टेस्ट वाला, ये देखो इसके ऊपर तुम क्लिक करोगे तो ये बोलेगा मैंने यहाँ से कनेक्ट, लेकिन ऑब्वियसली मैंने इसको बंद करके रखा है जब तक। ठीक है, कहाँ से चेक करूँगा मैं, यहाँ से जाके चेक करूँगा कनेक्टिविटीज ऑफ।
और इसका ही शट डाउन करना है तो वो भी कर सकते हैं, इस इंटरफेस को भी शट डाउन करके रख सकते हैं। इसका अपस्ट्रीम कनेक्टिविटी डाउन है, लेकिन डाउनस्ट्रीम में तो वीलैन को तो सर्व कर रहा है ना वो वीएम्स को, वो भी बंद करना है तो एडमिन डाउन भी करके डाल सकते हैं। ये कनेक्टिविटी डाउन है, ये एडमिन डाउन है, तो ये मैं दोनों को भी आप कर दूँ। ठीक है, अभी इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, प्रोफाइल्स भी है, सेगमेंट प्रोफाइल्स। जनरली अगर आप सीसीएनपी पढ़ोगे ना तो उसमें सपोज ये बहुत से प्रोफाइल मैंने यूज़ किए हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको डीएससीपी आप ये करना है, ठीक है ना, तो आपको अलग अलग प्रोफाइल्स यूज़ करना होता है, तो वो प्रोफाइल्स आप यहाँ पे बनाना है और वहाँ पे यूज़ करना है। तो ये प्रोफाइल के काम क्या क्या है, अगर आप देखोगे इफ़ यू गो फॉर मैं पहले जाता हूँ आईपी डिस्कवरी प्रोफाइल। तो आईपी डिस्कवरी प्रोफाइल में क्या होता है कि अगर आपको आईपी एड्रेस चाहिए, मेरा इसका म्यूट द लाइन। तो जैसे तुमको याद है कि डीएससीपी हर कोई, अगर आपको कॉर्पोरेट में अगर आपको डीएससीपी आपको इंट्रोड्यूस करना है तो ऑल स्विच पोर्ट्स आर नॉट सपोज टू ऑफर दी एड्रेस, दे आर ओनली देयर टू रिसीव द एड्रेस। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि कोई भी आके आपका डीएससीपी चलाएगा नहीं आपके पास से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इनेबल ट्विक करना पड़ता है पूरा। ठीक है, तो इसमें आप डिफ़ॉल्ट में आप खुद नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका खुद का आईपी डिस्कवरी प्रोफाइल बनाना पड़ेगा आईपी डीएससीपी के लिए, और देन यू हैव टू इनेबल एंड डिसेबल दिस डीएससीपी। ठीक है, और वो सेगमेंट को जाके लगाना पड़ेगा, तो वहां से वो सर्वर चलेगा। ठीक है ना, ये आर्प सुनिए स्नूपिंग है, डुप्लीकेट आईपी आपको डिटेक्ट करना है तो वो भी यू कैन आल्सो डू। एनडी स्नूपिंग ये आता है आपके इसमें IPv6 में। ठीक है, तो दैट इज आल्सो हियर। VMware के टूल्स आपको इंस्टॉल करने देना है नहीं देना है, तो दैट आल्सो डिस्कवरी के लिए ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द आईपी प्रोफाइल। फिर सिक्योरिटी प्रोफाइल भी होता है, सेगमेंट सिक्योरिटी प्रोफाइल। अब सिक्योरिटी प्रोफाइल में ये यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर को ब्लॉक करना है कि नहीं करना है, दिस आल्सो यू कैन गो अहेड एंड इनेबल एंड डिसेबल। ठीक है, तो जनरली क्लाइंट को ब्लॉक करते हैं, उसको भी रखते हैं। ठीक है, सो कभी वहाँ पे स्विच है तो बीपीडीयू भी फिल्टर्स भी आते हैं, तो ये डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन। कभी आपको रेट लिमिट लगाना है किसी सेगमेंट पे, तो आप ये प्रोफाइल लो, उसको बोलो कि भाई तू 10 MB से ट्रैफिक ज़्यादा जनरेट नहीं करेगा, तो वो रेट लिमिट वहाँ पे उसको लग जाएगा सेगमेंट बेस। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको कभी मैक डिस्कवरी तो कोई यूज़ नहीं करता है, बस आईपी डिस्कवरी और सेगमेंट सिक्योरिटी ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद में ब्रिज प्रोफाइल इज़ डिफरेंट थिंग, उसको अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया मैंने। तो ये यहाँ पे जाके आपके सेगमेंट में लगा देने का प्रोफाइल यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में ब्रिजिंग भी एक ऑप्शन है, URPF मोड भी एक है। लोड बैलेंसर का इट टुक समथिंग 1.5 month फॉर मी एंड दोज गाइज टू आइडेंटिफाई URPF मोड। ये इसके वजह से बहुत बड़ा एक इशू हुआ था। ठीक है ना, एक लोड बैलेंसर में AVI लोड बैलेंसर का एक इशू था। ठीक है, जो आईपी एड्रेस ये करता ना ट्रांसपेरेंसी, प्रिजर्व क्लाइंट आईपी, प्रिजर्व क्लाइंट आईपी, अगर आपको ये फीचर इंप्लीमेंट करना है विथ NSXT तो आपको वो स्ट्रिक्ट मोड आपको वहां से हटाना पड़ेगा। ये देखो यहीं पे बताता है ये, तो ये देखो स्ट्रिक्ट मोड दिख रहा है, URPF मोड, इसका स्ट्रिक्ट को आपको नन करना है। तो मेरे साथ क्या हुआ था, ये तो मैंने पहले टैग इंजीनियर को बताया था ऐसे करना है, क्या टैग इंजीनियर ने बोला आपका ये टोपोलॉजी नहीं है। तो 1-1.5 महीने के बाद में फिर पता चला कि हमारा यही टोपोलॉजी है। देन वी डिड दिस एंड एवरीथिंग स्टार्टेड वर्किंग फाइन। सो बहुत से छोटे छोटे स्मॉल सेटिंग्स भी होते हैं जो कि आपको करना होता है। ठीक है, और उसके बाद में कभी आपको यू विल गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विथ योर दिस वन, क्या नाम है अपना, टैग टीम से। उस टाइम पे दे विल आस्क यू टू जनरेट द लॉग्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे जाके आप सपोर्ट बंडल में यू कैन गो अहेड एंड मैनेजमेंट नोड आपने सेलेक्ट किए
तो आप NSXT मैनेजर को इसमें अंदर ले लो और स्टार्ट बंडल। तो इससे क्या होगा, NSXT मैनेजर के पूरे लॉग्स वो जनरेट करेगा। तो या आपको किसी एज के यानी एज के लॉग्स चाहिए दोनों के, तो आप ये दोनों को अंदर ले लो और फिर स्टार्ट कलेक्टिंग लॉग्स। फिर आपको किसी होस्ट को भी ऐड करना है कि हाँ भाई ये भी इन्वॉल्व था उसके अंदर, तो उसको भी इसमें ऐड कर दो। लेकिन ये 4-4 6-6 GB बनता है, ठीक है, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये क्या करेगा, दिस विल जनरेट दी लॉग बंडल। ये लॉग बंडल को डाउनलोड करना है, फिर वहाँ पे जाके उनके SFTP सर्वर पे अपलोड करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। तो जैसे आप करोगे तो ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं सबको हटा के एक का ही करता हूँ सिर्फ। ज्यादातर NSX और ये नोड एज नोड के लॉग देते हैं मतलब। हाँ करेक्ट, उतने के देते हैं, लेकिन ये भी देना एंड टाइम पे फिर वो प्रॉब्लम आ जाता है, राइट। तो आप ऐसे लॉग ये करो और उसको दे दो। यू हैव टू डाउनलोड इट लोकली एंड देन अपलोड इट टू देयर सर्वर। और कुछ एनी क्वेश्चन गाइस? सर VXLAN में आपने बताया था कि इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक हेड एंड रिप्लिकेशन होता है, एक 2 टायर का होता है। तो इसमें कौन सा यूज होता है सर, हेड एंड रिप्लिकेशन होता है या फिर 2 टायर आर्किटेक्चर यूज होता है? क्या आप समझे नहीं? करेक्ट, ये इसमें था। आई थिंक अभी करंट टोपोलॉजी में हेड एंड रिप्लिकेशन ही हो रहा है। हेड नहीं हो रहा रहेगा उसमें। हाँ, 2 टियर नहीं हो रहा है। 2 टियर के लिए बहुत बड़ी टोपोलॉजी चाहिए और बहुत सारी ESXi होस्ट, फिर मल्टीपल क्लस्टर चाहिए, तब उस केस में 2 टियर रिप्लिकेशन होगा। यस करेक्ट। हाँ तो ठीक है, अभी वो यहाँ पे था कहीं, तो लास्ट वाला ही है, ये है, दिख रहा है, बम ट्रैफिक। ये है आपका बम ट्रैफिक हेड एंड रिप्लिकेशन, सबको जाएगा। जहाँ पे वो VM नहीं है वहाँ पे नहीं जाएगा। दिस फॉलोज द स्पैनिंग ट्री आर्किटेक्चर। स्पैनिंग ट्री में होता है ना, जहाँ पे वो पोर्ट नहीं है तो वहाँ पे नहीं जाता इंस्टेंस, ठीक है। और ये हेड एंड है। और दूसरा Tier 2 आर्किटेक्चर में क्या होता है कि वो किसी एक को आइडेंटिफाई करते हैं, और जैसे कि 4 और 7 आइडेंटिफाई हो, 1 तो 2 और 3 को दे रहा है, ये 4 को देता है और ये देता है। लेकिन देखो मैं एक बात बताता हूँ, इसमें इतने पैकेट लेवल पे एक्चुअली दिस इज ओनली अंडरस्टैंडिंग, लेकिन कंपनी लेवल पे आप जाओगे ना तो आपको ऊपर ऊपर के ही मेन चीज़ें काम आएगी। यू गॉट माय पॉइंट? पैकेट लेवल तो ठीक है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो लेकिन ये भी दोनों भी ठीक है, पैकेट लेवल भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। तो डू यू सी, देखो मैनेजमेंट चैनल भी डाउन हुआ और कंट्रोल चैनल भी डाउन हुआ, ये दोनों का। तो ये अलर्ट आपको ओपन हो गया, तो आपको इसको सप्रेस करना है तो यू कैन गो अहेड एंड सप्रेस इट कि भाई हाँ मुझे पता है लेकिन अभी मत बताओ मुझे। आपको एक्नॉलेज करना है, हाँ मुझे पता है मैंने देख लिया, और रिजॉल्व करना है तो आप रिजॉल्व भी कर सकते हैं कि आपने इसको फिक्स किया लेकिन फिर भी आ रहा है, तो आप मैन्युअली जाकर रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फिर से जनरेट हुआ तो फिर से ओपन कर देगा। बट इट है बहुत सी चीजें गाइज, मैं बहुत सी चीजें आंसर कर रहा हूँ, आपने एक पूछे तो मैं दूसरे 2 चीजें बता रहा हूँ। ऑटो रिजॉल्व भी होते हैं ना अलर्ट्स, मान लो अभी वो VM ओके VM स्टार्ट किया था ना हमने, तो ये ऑटो भी रिजॉल्व होते हैं। ऑटो भी रिजॉल्व होता है, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होता है। सर इंटरव्यू में कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लास्ट इशू कौन सा हैंडल किया था, उसका ट्रबल शूटिंग स्टेज बताओ, या फिर क्या इशू आया था, ऐसा कोई सिनेरियो बताओ ना सर। हाँ अच्छा है, बहुत बारी। तो इसी का ले लो URPF का क्या बोलते हैं, उसको बोलो कि भाई मैं क्या कर रहा था, चलो अपन सिनेरियो बनाते ना, क्या बोलते हैं। बट सर साबिर सर, अगर बताए तो दे विल आस्क लाइक आर यू रियली वर्किंग विद दैट एडवांस लोड बैलेंसर? ये तो प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम है। देखो मेरे टाइम पे तो यहाँ AVI था, वो फिर वो AVI पे सवाल करेगा, दैट्स द थिंग। हाँ ठीक है ना। तो ठीक है, मैं दूसरा सवाल बताता हूँ। मेरे टाइम पे क्या हो रहा था प्रॉब्लम, कि एनी VM विच इज कनेक्टेड हियर, वो सबको क्या हो रहा था कि एक IP यूज हो रहा था, बिकॉज आई एम यूजिंग वन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ऑल माई VMs वेर रिसीविंग दी हायर ब्लॉक, वो RA वगैरह बोल रहा था ना मैं, ठीक है ना। तो
क्या हो रहा था, जैसे कि /24 रिसीव करना है तो /16 रिसीव कर रहे थे इन फॉर्म ऑफ IPv6, ठीक है। उसके वजह से एक दूसरे को पिंग नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में आफ्टर लॉट्स ऑफ ट्रबल शूटिंग विद NSX गाइज, दे आस्क मी टू क्रिएट वन प्रोफाइल, और वो प्रोफाइल में उन्होंने मुझे ND डिसेबल करने को बोला, डिसेबल या इनेबल, लेट मी शो यू। ND स्नूपिंग, यस यही है, ठीक है। ये ND को, इसको ये इनेबल था, इसको डिसेबल कर दिया मैंने, तो वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दिस इज वन प्रॉब्लम यू कैन एक्सप्लेन देन, ठीक है। तो सागर में इसमें वो IPv6 यूज होता है क्या, बट नॉर्मली? IPv6 बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इंटरव्यू क्वेश्चन में वो पूछेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि भाई अभी आई फेज वन, अभी मैं मेरा ऑफिस का कैसे बताते बैठूंगा तुमको क्या बोलते हैं? इंटरव्यू सेशन अलग से लेने वाले हो या इसी में कवर एक करें? काम करते हैं, लेट्स गो अहेड एंड स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग, ओके। हाँ, सो we'll have this one. Okay guys, I am stopping today's session. थैंक यू। 1 minute, जाएंगे सब।